डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लिखा है लाइंस एंड एंगल्स, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, दैट इज ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 6. क्लियर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज लाइंस एंड एंगल्स इट प्लेज अ वाइटल रोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 9th में तो काम आएगा ही, 10th के अंदर भी बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं ज्योमेट्री के, वो सारे कंसेप्ट इसके बेस पे हैं. सो यू शुड प्लीज प्रॉपरली गो थ्रू दिस चैप्टर. और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3, टोटल 3 एक्सरसाइजेस आ गए. सो वो हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लाइंस एंड एंगल्स लेके आया चैप्टर नंबर 6. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो हम लोग देखते हैं विद द कंटेंट्स के कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे. सो कंटेंट्स वुड बी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फर्स्ट, different types of angles, intersecting lines and non-intersecting lines, parallel lines and transversal, different theorems and pairs of angles, sum of angles of triangles, उसका proof है actually, so for that, and exterior angles of triangle. Clear? So ये सारे points हम लोग cover करने वाले हैं introduction part में. And please anywhere you find doubt you can go and in comment section और आप अपना डाउट पूछ सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग. हाँ, बेसिकली जो हमने वीडियो बना दिए हैं उसके रिगार्डिंग अगर डाउट है, हाँ वो पूछिए आप, उसको हम करेंगे. और जो नहीं बनाए हमने वीडियोस और आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको आना चाहिए या कवर करना चाहिए या हमें वीडियो बना के भेजना चाहिए, सो वी विल श्योरली डू दैट. सो वॉट एवर यू फील आप लोग लिख सकते हैं. सो वॉट एवर एज सुन एज पॉसिबल वी विल रिप्लाई टू यू. क्लियर? So first of all, moving on to the contents, that is collinear and non-collinear point. First, see collinear and non-collinear points. Basically, suppose diagram है, suppose ये बहुत सारे points हैं, different points are there. The points which are not in line. Suppose ये सारे जो points हैं, they are not in line, not on single line. So they are known as non-collinear points. They are known as non-collinear points. अगर पॉइंट सारे के सारे लाइन में है, जैसे ये 3 पॉइंट्स, जस्ट बेसिकली डायग्राम बना रहे हैं थोड़ा, दिस 3 पॉइंट्स आर इन लाइन, सो दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. सो those points which are on or which are in a single line, they are known as collinear points. And those points which does not lie on a single line, या एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह हैं, they are known as non collinear points. So collinear points which are in the same line या on the same line are called collinear points. And non collinear points which are not on the same line or in the same line and are randomly arranged are called non collinear points. So आपको पता चल गया ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, so they are collinear points. But randomly हम दूसरे points को देखें, they are not in straight line, so they are non collinear points. क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देन आते डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. आप लोग ने स्टडी किया होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड straight angles, and many different angles are there. So based on that, first of all, acute angle. So the angles which are less than 90 degree are known as acute angle. Suppose 60 degree, 30 degree, 10, 20, less than 90 means acute angles. If it is exactly 90 degree, तो उसको बोलेंगे हम लोग right angle, which is exactly 90 degree is known as right angle. Then the angles which are greater than 90 degree are known as obtuse angle. The angles which are greater than 90 degree are known as obtuse angles. So first of all, acute angles, angle less than 90 degree are called acute angle. Obtuse angle, the angles which are greater than 90 degree are known as obtuse angle. Right angle, the angles equal to 90 degree is called as right angle. You can measure with the protractor as well. Clear? And in near means whenever the construction part would be there, at that time we will be explaining that how to construct 60 degree, 30 degree, 40 degree and all. So that part also we are going to cover. But till then you should think that what is actually acute angles less than 90 degree, obtuse angle greater than 90 degree, and right angle that is exactly 90 degree. Clear? Then beyond this, there are different types of angles more. They are, see,
if it is 180 degree straight line it is forming and it is 180 degree, so it is known as straight angle. Clear? It is forming a straight line and 180 degree it is known as straight angle. Then it comes complete angle. Complete angle means whole circle. Circle would be having 360 degree. So 360 degree is a complete angle. So here it is complete angle. Clear? And then it comes reflex angle. हर एक पार्ट देखते हैं, चलो वन बाय वन देख लेते हैं. स्ट्रेट एंगल, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. सो ये आपको दिख रहा है. देन कंप्लीट एंगल, एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. एज आई टोल्ड, पूरे सर्कल का अगर हम लोग एंगल निकालेंगे दैट इज 360 डिग्री. यू कैन मेजर ओवर हियर ऑल्सो. 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो 180 डिग्री. सी 180 डिग्री ओवर हियर, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो अपोजिट साइड में भी 180 डिग्री होगा. सो 180 प्लस 180 360, दैट इज कंप्लीट एंगल. जब कंप्लीट सर्कल बना रहा है देन इट इज नोन एज कंप्लीट एंगल. देन इट कम्स रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूं. ये जो सपोज ये एक एंगल है, इस एंगल के ये अदर साइड वाला, दैट इज जो एंगल 360 से बड़ा हो, मीन्स लेस, छोटा हो, सॉरी, लेस देन 360 इज नोन एज reflex angle. The angles greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं. क्लियर? ग्रेटर देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा होगा. सपोज इसका, जैसे ये सपोज कंसीडर करते हैं दिस इज 60 डिग्री, तो इसके बाद वाला जो एंगल होता है 300 डिग्री, सो विच इज नोन एज दिस पार्ट, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? यानी जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर? So ये different types of angle other than acute, obtuse and right angle. Then pairs of angle आते हैं. Adjacent angles. Adjacent एक तरह से मैं बोलूंगा पड़ोसी. Clear? जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, पास वाले पड़ोसी होते हैं भाई, जो सबसे पहले काम आते हैं, वैसे ही adjacent angles are पड़ोसी एंगल मेरे हिसाब से. तो so suppose ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो A और B एक दूसरे के पड़ोसी है, so they are known as adjacent angles. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंगल A और एंगल B है, चाहे वो स्ट्रेट एंगल या लिनियर पे कुछ भी बना रहे हैं, बट दे आर नियर बाय, एक दूसरे के नजदीक रह रहे हैं, सो वो पड़ोसी एंगल, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. तो ये चीज याद रखना है. एडजेसेंट एंगल्स मींस द एंगल्स व्हिच आर नेबर टू ईच अदर या नियर टू ईच अदर. क्लियर? और हिंदी में अगर हम लोग नॉर्मली बोले दैट इज पड़ोसी, सो दे आर एडजेसेंट एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स दोस व्हिच आर नियर टू ईच अदर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच आर नियर टू ईच अदर और नेबर टू ईच अदर आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. देन कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये चीज याद रखना. कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनका एडिशन अगर हम लोग करें तो 90 डिग्री होता हो, 2 या 3 या वॉट एवर इट इज, सम ऑफ एंगल्स विच इज 90 डिग्री. सपोज एक एंगल 30 डिग्री है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो, सो 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री. तो 60 इज द कंप्लीमेंट्री एंगल. क्लियर? 60 और 30. सो सपोज दिस इज होल इज 90 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is equal to 90 degree, pair of angles whose sum is equal to 90 degree is called as complementary angles. Example, what is the complementary angle of 30 degree? तो क्या करना है, 90 minus 30 that is equals to 60 degree. So 60 degree 30 degree का complementary हो गया. Solution, let A equals to 30 degree, B equals to what? So complementary angles sum equals to 90 degree, तो A plus B equals to 90 degree. So 30 plus B that is 90 degree, यानी B हो गया हमारा 60 डिग्री. तो समझ में आया कैसे कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है. अगर 30 डिग्री हुआ दिया हुआ है देन कंप्लीमेंट्री एंगल वुड बी 60 डिग्री. इफ इट इज 45 डिग्री तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45. क्लियर? 90 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही बचता है. दैट्स व्हाई कंप्लीमेंट्री एंगल इज 45. ये चीज याद रखनी है, समझनी है मेन चीज. देन इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स में सम कितना हो रहा था, 90 डिग्री. क्लियर है? आप लोग को समझ में आया होगा. ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम था 90 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. ये चीज याद रखना. क्लियर? देखो जैसे ये है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एडिशन 180 डिग्री होता है. हम लोग ने अभी देखा था कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सो 180 डिग्री, दो अगर एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो
pair of angles whose sum is equals to 180 degree is called supplementary angles. Pair of angles whose sum is equals to 180 degree is called supplementary angles. Example, what is the supplementary angle of 80 degree? देखो दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो 80 माइनस 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री. तो 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? 100 डिग्री. कैसे वो फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन, लेट ए एन इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू हमको फाइंड करना है. सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो a 80 हो गया, b फाइंड करना है 180, सो b इक्वल्स टू 100 डिग्री. देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज 100 डिग्री. समझ में आया? देन आ जाता है हमारा एक्सियम 6.1. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, the then sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री, that is linear pair. जैसे कि अभी हमने देखा, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन खड़ी है, सपोज ऐसे, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री ही होगा हमेशा, ये याद रखना है. इट इज नोन एज लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन के ऊपर है ये दोनों एंगल्स, सो इट इज नोन एज लीनियर पेयर. दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, सो इट इज नोन एज लीनियर पेयर. सो ए एंड बी आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे है. सो दे आर नोन एज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन and whose sum is equals to 180 degree is known as linear pair. Pair of angle on a straight line and whose sum is 180 degree, मतलब straight line पे angles और दोनों का addition 180 degree are known as linear pair. Axiom 6.2, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. अब ये समझना, देखो axiom 6.1 तो समझ में आ गया कि दोनों एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इट इज अ लीनियर पेयर. क्लियर? अब ये याद रखना, देखो यहाँ पे दोनों एंगल्स मिला के स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री ही होगा. नाउ 6.2 के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई दो एंगल्स हैं, सपोज एंगल ए और एंगल बी, जिनका एडिशन पता नहीं लेकिन सम होता है 180 डिग्री, अगर दोनों मिला के उनका एडजेसेंट सम्स होता है 180 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों लाइन है, ये और ये आर्म्स बोलते हैं, दैट इज ये पूरा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. तो वाइस वर्सा बोलते हैं ना, जैसे कि इफ द एंगल इज लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री, और अगर दोनों का एडिशन 180 डिग्री है तो 6.2 एक्सियम के हिसाब से ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ लो एक बार शांति से कि अगर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है विथ कॉमन एडजेसेंट एंगल्स बोलूंगा, दो कॉमन एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो उनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री होगा, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर. अब दूसरा एक्सियम 6.2 क्या बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. सो वाइस वर्सा के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग किस तरह से यूज करना है दैट डिपेंड्स. क्लियर? सो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, क्लियर, जैसे ये लाइन L और लाइन A एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, सो इट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. समझ में आया? देन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कितना भी उनको एक्सटेंड कर लो, लाइन L और लाइन M, अब इन दोनों लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड करूं, जैसे रेलवे की पटरीज कैसे होती हैं, ट्रेन, ट्रैक्स ऑफ ट्रेन, सो दे गो पैरेलल टू ईच अदर. सो उसी तरीके से लाइन L एंड लाइन M आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे विल बी ऑलवेज पैरेलल. सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उनको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उनको पैरेलल लाइंस. वो आगे हम लोग देखेंगे, बट आपको समझना है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइंस. थियरम 6.1, if two lines intersect each other then their vertical opposite angles are equal. ये थियरम के हिसाब से क्या है सोचना, सपोज दो लाइंस हैं L और M, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, तो उनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, देखो ये क्रॉस हो रहा है, एंगल 1 इस तरफ है, एंगल 2 इस तरफ है, सो दे आर नोन एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो अगर एंगल 160 डिग्री होता है, सपोज जस्ट एग्जांपल, तो एंगल 2 विल बी ऑल्सो 60 डिग्री. ये चीज याद रखना है. ऑल्सो ये तो एंगल 1 और एंगल 2 की हुई,
एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे क्योंकि वो भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ही है। तो एंगल 3 अगर 40 डिग्री है तो एंगल 4 भी 40 डिग्री होगा। ये चीज जान लेना है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि आपको रीजन मेंशन करने होते हैं। तो जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें, देखो आप फिर बाद में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, फिर आप लोग बोलो कि एक लाइन ऐसे जा रही है, 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 तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो नो। टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ही उनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, और ये वाले एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। सो वर्टिकल ऑपोजिट angles vertically opposite to each other on intersecting lines are equal and are called vertically opposite angles. Here angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. समझ में आया? देखो थियरम्स याद करने की जरूरत नहीं है, उनका कंसेप्ट याद करो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको थियरम मेंशन नहीं करना है, पर कंसेप्ट याद करना है कि हाँ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये चीज याद रखनी है, बाकी थियरम्स को याद करने की जरूरत नहीं है, उनका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये कंसेप्ट है तो आपको याद करना है। क्लियर? देन ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी दो लाइन सपोज उनको जब इंटरसेक्ट करती है थर्ड लाइन दूसरी दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। मतलब ये लाइन इन दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल हुई। अब लाइंस जो है दूसरी दो लाइंस वो नॉन पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है, सो डिपेंड्स। तो ट्रांसवर्सल इस तरह से वर्क करता है। क्लियर? सो transversal, a line which intersect two or more line at a distinct points is called transversal. At a distinct points means अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे लाइन L, लाइन M, और ये जो X लाइन हुई वो ट्रांसवर्सल हुई क्योंकि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पॉइंट। समझ में आया? अब मैंने क्या बोला, लाइंस पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल ही हो, लेकिन अगर पैरेलल होती है तो क्या क्या फायदे हैं वो चीज हम आगे पढ़ते हैं। दैट इफ लाइंस आर पैरेलल then what would be the concepts flowing on. Now interior angles and exterior angles की बात करेंगे जब अगर दो लाइंस पैरेलल है। क्लियर? when L और M पैरेलल है और X ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। सो एक्सटीरियर एंगल्स जो लाइन के बाहर की तरफ है, देखो आपको बता दूं, जैसे ये है लाइन, ये दोनों एंगल बाहर है, ये वाली लाइन है, ये दोनों एंगल बाहर है, आउटर साइड, सो दे आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर की साइड है 4, 5, 3 एंड 6, दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। बाहर की तरफ वाले एक्सटीरियर एंड अंदर की तरफ वाले इंटीरियर। सो इनसाइड, एक्सटीरियर मींस एग्जिट मींस बाहर। क्लियर? सो एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, 2, 8 and 7 are exterior angles. Angle 1, 2, 8 and 7 are exterior angles. Interior angles 3, 4, 5 and 6. समझ में आया? पहले ये चीज याद रखना, एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, इंटीरियर किसको बोलते हैं। क्लियर? नाउ एग्जाम 6.3, if transversal intersect two parallel lines then each corresponding angle is equal. अब corresponding angle आप बोलोगे corresponding angle होते क्या है सर, पहले वो तो बताओ फिर equal बताना। सो पहले मैं बता देता हूं, ये तो corresponding angles are equal। देखो लाइन L और M पैरेलल है, X is a transversal, तब P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ एंगल 1 and 5 यानी ये दोनों, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस पैरेलल लाइन के इस तरफ, इस पैरेलल लाइन के भी इस तरफ, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इक्वल। फिर उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 7, सो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 8, दैट इज ये 4 और ये 8। एंगल 2 एंड एंगल 6, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 6। समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग मीन्स यहां का तो इसके साथ। क्लियर? अगर इस तरफ है एंगल 2 तो एंगल 6, एंगल 3 तो एंगल 7, एंगल 4 तो एंगल 8। ये चीज आपको समझनी होगी, ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान दें। क्लियर? ये रेड पार्ट जो मैंने बताया पिंक कलर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज वो हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पेयर। क्लियर? सेकेंड पेयर यहां पे और यहां पे होगा 2 and 6, फिर यहां पे 4 एंड यहां पे गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा ध्यान दो। क्लियर? L और M ये है तो 1 and 5। क्लियर? 1 and 5, देन 2 and 6, देन
4 and 8 और आता है 3 और 7. So these are the corresponding angles. Depending on this you should know everything. Clear? ये समझ में आया? अब देखो आगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स भी बनते हैं. एक एक्सियम 6.5 बाकी है, दैट इज 6.4. एक्सियम 6.4 इज देयर. 6.4 क्या बोल रहा है कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू सच लाइंस, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ये जो एक्सियम था कि दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उसका उल्टा कि अगर ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 या एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो दोनों लाइन जिसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, दे आर पैरेलल लाइंस. ये हमेशा याद रखना. इसके वाइस वर्सा तो होता ही है हमेशा कि अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है. 6.3 के हिसाब से पहले पैरेलल लाइन दी हुई है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हम लोग ले रहे हैं, और 6.4 के हिसाब से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे, तो हमें प्रूव करना होगा L and M आर पैरेलल. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. कंफ्यूज नहीं होना, आराम से मिलेगा. हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. थियरम 6.2, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, the each pair of alternate interior angle is equal. Alternate interior angle is equal. So पहले देख लेते हैं. L and M are parallel, X is transversal जो P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. अब अल्टरनेट एंगल्स कैसे पता करोगे? तो आपको सिर्फ देखना है सीधा Z, जैसे ये Z बन रहा है तो ये Z और एक उल्टा Z. क्लियर? सीधा Z और उल्टा Z का मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले. और ये उल्टा Z. क्लियर? सो ये दो Z बना रहे हैं. Z के अंदर जो एंगल आ रहे हैं, जैसे कि सपोज उल्टा Z जो था उसमें ये एंगल, क्लियर, और सीधा Z जो था उसके अंदर ये वाला और ये वाला एंगल, दे आर इक्वल. कैसे अभी देख लेते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो हियर 4 और 6 देखो Z के अंदर आ रहा है, 4 और 6 are inside the Z, so they are known as interior, alternate interior angles. Clear? 4 and 6. फिर आते हैं 5 and 3 जो उल्टे Z, reverse Z, which is forming a reverse Z. That so 3 and 4, 5 are also equal. So angle 3 and angle 5 are equals. And whenever you are giving the reason, जब भी example exercise में आएगा तब आपको याद रखना है कि आपको रीजन देना है alternate interior angles are equal. ये तो हुई नॉर्मल बात. इसमें एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. जैसे सपोज ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा इस एंगल के. क्लियर? और ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. ये हमेशा याद रखना. दिस इज नोन एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये Z बन रहा है और Z के एक्सटीरियर में है. क्लियर? सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये और ये वाला भी इक्वल होता है और ये वाला भी इक्वल होता है. आपको ध्यान रखना है. ये थियरम 6.2 था. इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 1 and 7. सो एंगल 1 and एंगल 7 आर इक्वल. फिर उसके बाद आता है एंगल 2 and एंगल 8, दैट इज एंगल 2 and एंगल 8 आर ऑल्सो इक्वल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं Z के बाहर की तरफ वाले. थियरम 6.3 क्या बोलते हैं? देखो अभी 6.2 के हिसाब से तो क्या था, दो लाइंस पैरेलल है दी हुई थी हमको, एंड X वाज द ट्रांसवर्सल. So alternate interior angles means the angles which are formed inside this Z are equal. अब उसका उल्टा, reverse. If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal. अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को और जिनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, then two lines are parallel. यानी तो उसके दो लाइंस जो दी हुई है that is L और M पैरेलल होंगे. इसका मतलब if angle 4 and angle 6 are equal, anyhow हमने इक्वल दिया हुआ है या हमने इक्वल प्रूव कर दिया, then both L and M line are parallel to each other. ये चीज आपको याद रखनी है. ये 6.2 का रिवर्स हो गया 6.3, यानी रेसिप्रोकल बोल सकते हो, इनवर्स थ्योरम बोल सकते हो, जो भी है. क्लियर? सो उसका रिवर्स. देन इट कम्स
Theorem 6.4, if transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अपने मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटीरियर एंगल्स बताए थे, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स. सो सेम साइड में देखो, जैसे एल और एम लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, पी और क्यू पॉइंट. सो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड मतलब 4 और 5, 3 एंड 6. 4 और 5 सेम साइड में, देखो ये बता दूं, ये सेम साइड में आ गए 4 एंड 5. सो इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा अगर लाइन पैरेलल है तो. हाँ, ये चीज याद रखना, पहले पैरेलल दी हो तो. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री. ये तो हुआ थ्योरम 6.4 के हिसाब से. थ्योरम 6.5, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइंस आर पैरेलल. ये भी थ्योरम, देखो हर एक का थ्योरम का रिवर्स थ्योरम है ही है. पहले क्या था, अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो लाइन पैरेलल होगी. दूसरा था, अगर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, पैरेलल है अगर लाइंस, तो अल्टरनेट 4 और 6 इक्वल होंगे. अगर लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है और 4 और 6 इक्वल दिया हुआ है तो लाइन पैरेलल होगी. उसी के तरह अगर दोनों इंटीरियर पैरेलल है लाइंस, एल और एम, अगर लाइन पैरेलल है, क्लियर, समझ में आ रहा है, तो 4 और 5 का एडिशन 180 डिग्री होगा. अगर पैरेलल दी हुई नहीं है, अकॉर्डिंग टू 6.5 थियरम्स, दोनों लाइन दिया हुआ है और ट्रांसवर्सल दी हुई है और बोला गया है कि 4 और 5 एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, तो दोनों लाइन एल और एम पैरेलल होगी. हमेशा याद रखना है, ट्रांसवर्सल उल्टा थियरम होगा ही दोनों का. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट इंटीरियर थियरम्स. थियरम 6.6, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. बहुत इजी थियरम है. सपोज 3 लाइंस है, सी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और लाइन N जो है वो भी M से पैरेलल है. देखो लाइन L इज पैरेलल टू M एंड लाइन N इज ऑल्सो पैरेलल टू M. तो थियरम के अकॉर्डिंग L और N दोनों पैरेलल होंगे. देन अकॉर्डिंग टू थियरम लाइन L एंड N विल बी पैरेलल टू ईच अदर. यानी भाई हमने जो 5th चैप्टर में पढ़ा था, इक्वल्स आर इक्वल टू इक्वल्स, तो वो इक्वल होते हैं. सो लाइन L अगर M से पैरेलल है और N भी M से पैरेलल है तो लाइन L इज पैरेलल टू M. ये पैरेलल का सिंबल है, याद रखना, जो बीच में मैंने बनाया था पैरेलल का सिंबल है. थियरम 6.7 हमको प्रूव करना पड़ेगा. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सपोज ये ट्राइंगल है ABC, हमको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है. तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा लाइन L, लाइन N पैरेलल टू BC. ये हम लोग सब मान के चलते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन N पैरेलल टू BC, और मैंने इसको नेम दे दिया एंगल को 4, इसको नेम दे दिया एंगल को 5. अब आप समझना, हर एक चीज को समझना जो हमने अब तक यूज किए थे, या मैंने आपको सारे डिटेल्स जो बताई थी वो सब डिटेल्स का यूज करेंगे. आपको क्या प्रूव करना है, देखो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता ही है, लेकिन हमें प्रूव करना है. तो आपको ट्राइंगल दिया होगा, ये हम कंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से कर रहे हैं एक्स्ट्रा, दैट लाइन N इज पैरेलल टू BC. अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर मैं करूं, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप बोलोगे क्यों? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होता है. मैं बोलता हूं, आप बोलोगे क्यों? तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. ये देखो N क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 तीनों आ रहे हैं. तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, एडिशन, लीनियर पेयर बोलते हैं ना, 180 डिग्री. सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिंस लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग रख देते हैं. क्लियर? क्योंकि वो लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स आ रहे हैं तो तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा. अब वापस आप ध्यान दो, मैंने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, लाइन N इज पैरेलल टू लाइन B. तो आप देखोगे तो ये एक Z बन रहा है, देखो. और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वो रीजन देना पड़ेगा. सो नाउ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज सेकंड रिजल्ट.
फिर एक z ये भी बन रहा है, देखो रिवर्स z, उल्टा z मैं बोलता हूं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि लाइन n इज पैरेलल टू BC, तो ये उल्टा z यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया यहाँ पे भी। सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 को एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है इक्वेशन 2 के हिसाब से। और एंगल 5 जो है फर्स्ट इक्वेशन में, उसकी जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूं, बिकॉज एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हमको प्रूव करना था। हेंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हेंस प्रूव्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा आपके काम आएगा। नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका समझना किस तरह से होता है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस लाइन को, अकॉर्डिंग टू हिम, इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी सपोज अगर मैंने BC साइड को प्रोड्यूस किया और उसको एंगल का नेम दे दिया एंगल 4, सो अकॉर्डिंग टू द थियरम एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अकॉर्डिंग टू थियरम angle 4 will be equals to angle 1 plus angle 2. So this is the theorem, that is exterior angles are equal to two opposite angles of angle 1 and angle 2. Clear? So this is, thank you very much. ये आपका चैप्टर था जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया हुआ है। आप लोग को एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 मिलेगा। सो यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू गो थ्रू। क्लियर? सो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन रखना। इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। क्लियर? सो टेस्ट के लिए भी रेडी रहना। इंट्रोडक्शन पार्ट का भी देखो, हर एक पार्ट का, हर एक एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, फिर लास्ट में सबका कंबाइंड टेस्ट होगा। सो यू हैव टू गेट रेडी, और आपको हर एक चीज समझकर फिर आपको सॉल्यूशन करना है। सो थैंक यू वेरी मच। आप दूसरों को भी शेयर करें और खुद भी लाइक करें, कमेंट करें। क्लियर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके लिए भी कमेंट करें, और दूसरों को भी बोले, दूसरों को भी सेंड करें, ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू वेरी मच।